Hi people, this side Priyanka, and what about your side? So how it's going after the exams? 19th May, 18th May your exams have over, our exams, sorry, have over, and now it's 27th May. What's your target? Have you written down or it not? And what you are targeting? So I have purchased my AFM classes. Currently, I have given my group 2 in this attempt, which was I am kind of in a loop of saturation point before exams. Like if my exam is today, then past two exam 10 days before the exams, I'll not study at all. I'm not able to focus, and this happens. I'm just into other things. So, in order to beat that loop, my strategy this time my strategy will be like for like if my exams will be in September. So if it will start in first week, so for 15 days I'll have no phone, nothing, no YouTube videos, nothing. So before that I need to complete my syllabus in a such a way that I do not have any need. I don't have any need to see the YouTube videos. Okay, so already 10 days have gone, and in 10 days I have done content creation type of thing. I am making shorts and shorts only, shorts and long videos about for my another channel. So that's for entertainment purpose only. So our targets will be, my target AFM में मेरा target है AFM classes because I have purchased and it's 120 hours की class है वो पूरी 120 hours की. तो I 120 आवर्स की क्लासेस हैं, तो इट विल टेक अराउंड 60 डेज़. आई थिंक इट विल टेक अराउंड 60 डेज़. तो जिसमें से वी कैन एज्यूम मेरा 5 आवर्स हो गया है. तो इफ वी विल गो फॉर लाइक 110 आवर्स ओनली लेफ्ट, एंड तो वो आप लोगों का तो 40 to 60 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं इसके लिए ना, 40 to 60 डेज़ विदाउट स्किपिंग इट. ओके, तो 40 to 60 डेज़ ये हो गया विदाउट स्किपिंग इट. तो ये आपका AFM हो गया, एंड हमारा ऑडिट भी चलेगा बिकॉज देन इट्स वेरी हार्ड टू लर्न ऑडिट एट द लास्ट मोमेंट. तो इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो यू विल स्टार्ट. सो ऑडिट में भी हम लोग ऐसे, I haven't purchased any specific class and I'll do every topic of the SFM either through self study or through the videos. Okay, through YouTube videos. तो आई एम हियर 40-60 डेज़ हमने SFM को दिए हैं, और 40-60 डेज़ ही हम जो है 30 to 40 डेज़ हम ऑडिट को भी दे देंगे, जहाँ पे एक्यूमुलेटेड रिवीजन, प्रैक्टिस और लर्निंग सब कुछ होगा ऑडिट और SFM. तो ये ऑडिट और AFM की बात हो गई. हमारा 40-60 डेज़ का हो गया ये, और जो हमारे पास डेज़ बचे रहेंगे उसमें हम क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेंगे, दैट्स इट. तो अभी हम लोगों के पास सपोज आज 27 में है, तो 27 मई का हमने पूरा हटा दिया. तो जून और जुलाई, राइट, जून और जुलाई हमारे पास रहेगा. तो 2 मंथ्स हैं हमारे पास. 2 मंथ्स मतलब कि जिसमें आप क्लास करोगे, समझोगे चीज़ों को, ये सब करोगे. तो और ये आपका ऑडिट तो फिर टारगेट हुआ कि जून में कंप्लीट हो जाना चाहिए. AFM हमारा चलेगा जुलाई के लिए. आई एम नॉट टारगेटिंग FR फॉर नाउ. और SFM AFM और ऑडिट भी इसलिए लिया है क्योंकि DT और IDT एक लेवल तक कंप्लीट हो गया है, और उसको वापस से वहीं से पढ़ना बोर होता है. इस वजह से वाई नॉट टू टेक AFM एंड ऑडिट ऑल्सो. आई डू अंडरस्टैंड कि एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है, यू आर जंपिंग ऑन टू अनदर सब्जेक्ट. ओके, I do understand, or if I don't understand, we will switch the strategy. It's not written somewhere that you can't follow this, you can't follow that, you have to stick to this plan, that plan. Whatever works for you, whatever makes you in a better position from the previous position, please do that. Please do that ihsan on yourself. Okay, so I have done it for, I have sketched it. And for DT IDT is like 1 hour every day. whatever I have studied, 4-5 क्वेश्चंस देख लिए, चैप्टर वाइज देख लिए. तो जून जुलाई में अपना DT IDT भी 2 बार कंप्लीट करके रखना है. तो इफ़ आई गिव 1 hour एवरी डे DT IDT को, तो नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए मुझे लाइक 1.5 hours पर मेरे पास टाइम नहीं है. AFM का प्रैक्टिस मेरे लिए, आई हैव पोर्टफोलियो, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम पोर्टफोलियो. इट्स वेरी 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 कैलकुलेटिव. आई एम नॉट एबल टू यूज़ M+ MRC की चीज़ें एंड अदर थिंग्स ऑल्सो इन AFM. कॉन्सेप्ट में है, कॉन्सेप्ट मतलब 80% कॉन्सेप्ट है, पर मेरा प्रैक्टिस केवल 20% ही है कैलकुलेटर चलाने का. और जो वहाँ पे जो कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हैं, राइटिंग की जो मिस्टेक हैं, तो AFM में अगर मैं 1 hour की क्लास देख रही हूँ ना, तो मुझे 2 hours लग रहे हैं उसको रिटन डाउन वाली प्रैक्टिस है. बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव एनी क्वेश्चंस. वो अगेन मुझे ऐसा फियर आता है कि आई हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस, और ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है. सो उस पर थोड़ा काम करना है. तो AFM की अगर मैं 1 hour की भी क्लास देख रही हूँ, तो 2 hour मुझे अपना इनपुट देना पड़ रहा है. तो DT IDT का मुझे लगता है कि अभी एक ही सब्जेक्ट लेंगे, या फिर इधर आई टेक DT और आई टेक IDT. तो आई गो विद DT, आई विल गो विद DT. हाँ, तो DT के साथ जाएंगे.
और DT भी हमको फिर नेक्स्ट हम टारगेट इसका ले रहे हैं 20 डेज़, क्योंकि हमें लग रहा है उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड वंस रिज़ल्ट विल आउट देन फिर प्रेशर बढ़ जाएगा सितंबर एग्ज़ाम के लिए। तो अपना ये DT हो गया। और तो अभी हमारे पास 3 सब्जेक्ट चलेंगे। AFM स्क्रैच से करना है, उसमें ज़्यादा लिखना है। उससे बोर हो गए, 1 क्वेश्चन किया और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, स्विच टू ऑडिट। ऑडिट में थोड़ा नया पढ़ने को मिला आपको। और ऑडिट में आपने पढ़ा तो ऑडिट में आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आपको लग रहा है अब एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्विच टू ऑडिट। कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नया रटने को मिलेगा। फिर आप ऑडिट को भी लगेगा नहीं इतना नहीं रट सकते, तो उसको एक बार साइड रखना है। फिर DT के कुछ प्रोविजंस हैं, उसको केवल रिकॉल करने की ट्राई करना है। नहीं रिकॉल हो रहा है उसको बार बार देख लेना है। दैट्स सिंपल ईजी गोइंग। दीज आगे के जो 10, 20, 30 डेज़ है, 30 डेज़ का एक लॉन्ग टारगेट है, क्योंकि 30 डेज़ इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि 18 को एग्जाम्स ओवर हुए हैं और 10 डेज़ हमारे पास जा चुके हैं। और उन 10 डेज़ में मैंने एज सच कोई अच्छा टारगेट नहीं अचीव किया है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ना है। हाँ, स्टडी के लिए मेरे पास 6 to 7 आवर्स के लिए है जैसे, तो 6 to 7 आवर्स में मेरा सिर्फ 1 से 2 आवर जा रहा है। एंड उस 1 से 2 आवर में आप क्या टेस्ट दोगे, क्या सब्जेक्ट करोगे, क्या आपको और सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इसलिए है। तो अभी ऐसे हर डे वाइज ना मैं अपने वीडियोस डालती रहूँगी कि आज मैंने क्या किया, मैंने किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़ी थी और उसको कैसे लेके चल रही हूँ। इट विल हेल्प मी अलॉट। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल। ओके, सो स्टडी का मेरे है 6-7 आवर्स है। मुझे बैठना है किताबों के साथ शांति में। तो फ़ोन यूज़ करने लग जाती हूँ मैं बीच बीच में, तो उसमें मेरा स्विच हो जाता है वो वीडियोज़ के लिए बनाने के लिए। तो एक तो ये क्लास कंप्लीट करनी है। ऑडिट में भी अब मुझे यूट्यूब पे अपना ये सब देखना है। और स्टडी आवर्स मेरे 6 to 7 आवर्स हैं, है ना, उसमें और ट्राई करने, क्योंकि फोकस लेवल एकदम बुरा हो चुका है। तो जो चीज़ 5 मिनट्स की है वो मुझे हाफ एन आवर में समझ में आ रही है। मतलब जब राइटिंग आप प्रैक्टिस करते हो या फिर जब आप रिकॉलिंग करते हो, जब आप अकेले बैठते हो ना, देन इट हिट्स वेरी बैडली, बिकॉज देन यू रियलाइज़ कि अभी फोकस लेवल तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इस बुरे से फोकस लेवल के साथ मैंने ये टारगेट 6 to 7 आवर्स का लिया है। इट इज़ चैलेंजिंग, बट अगर ये चैलेंज नहीं उठाएंगे देन आई हैव टू लीव CA अ लिटिल अवे फ्रॉम मी। सो ये मेरा अपने टारगेट की बात हो गई, मैंने सब्जेक्ट्स की बात कर ली और हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसकी बात कर ली। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। कल फिर एक वीडियो के साथ आएंगे, या फिर शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं कि कैसे चल रहा था। जब मैं शॉर्ट्स में, मतलब जब मैं सब्जेक्ट में स्विच करूँगी और सब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ा है ये मैं शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूँगी। और मुझे अभी भी ऑडिट में जो आज सुबह मैंने पढ़ा था वो रिकॉल हो रहे हैं पॉइंट्स। आज मॉर्निंग में तो मॉर्निंग क्या नाइट ही थी, 2 o'clock से नींद एक बार खुल गई, फिर आई हैवंट गॉन टू स्लीप। ओके, सो या नाउ करेंटली आई एम इन ऑफिस एंड देन अगेन आई विल गो टू होम 7 or 7:30. Then we will see whether I'll be able to study in night, or again we will start in the night like 2 o'clock or 3 o'clock से। मेरे पास फिर 7 o'clock तक का 4 hours का चंक्स वहाँ पे मिलेगा और ऑफिस में 1-2 hours का। तो उसमें मुझे I'll try my best कि 6 to 7 hours मेरा हो जाए। Actually when we start wasting time, तो 1 minute, 2 minute, 5 minute, 10 minutes ऐसे वेस्ट होता है, and then it comes into chunk and we are in shock that 4 hours चले गए पता ही नहीं चला, 2 hours चले गए पता ही नहीं चला, और इतना ही टाइम था पढ़ने के लिए। तो either to we can give that time to other things, or I can give that time to studies. There is study versus other things. Okay, so yes, be in touch. I'll keep showing up, and I'll try to not to lose any day, to not to post, just in order to build that rhythm in myself. Okay, bye, take care.